For the first time ever on Indian television, a news channel, and that too your channel, national news broadcaster DD News, visited prominent Kashmiri Pandit villages in North and South Kashmir, and also one of the most prominent Kashmiri Pandit settlements in downtown areas, particularly this one in Keni Mohalla, Ranawari. We also went deep down in the heart of North-South Kashmir, especially Nadimarg and Wandhama, which grabbed in 1989 onwards international headlines for mass massacres of Kashmiri Pandits way back then at the outset of terrorism in Kashmir Valley. 3 decades on, we dig out the truth. These once upon a time terror zones where Kashmiri Pandit families lived happily have virtually turned out into ghost towns. 3 decades on, we dig out the truth and find out who failed Kashmiri Pandits then. 3 decades on, buried in the sands of time, are some known and unknown stories of forced exile and exodus of Kashmiri Pandits. 3 decades on, much has been written, much promised in shallow political discourses. जो दो बंदूकों में है, इसका हल गोली से नहीं, बोली से होना है। गांव वालों को इकट्ठा करके अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, जिससे एक ही समुदाय के 24 लोग मारे गए। वारदात के बाद आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। हमने क्या किया था? इनका कुछ नहीं किया था। अगर ये आज़ादी ढूंढते हैं तो ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी? Under the scourge of Pakistan-sponsored terror, why were Kashmiri Pandits forced to leave their own homeland? What was the portent of 19th January 1989 onwards that marked the beginning of the forced mass exodus? Their selective killings, genocide, massacre of Kashmiri Pandits. Why till date are there negligible or zero convictions? We ask, why? Today, 2020, marks 30 years of this void, unspeakable pain, suffering in silence. Are the questions as to why their lives were torn apart empty questions? What was their fault? This is Nadimarg, 75 kilometers from Shupian in South Kashmir, where terror cadres like Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba were reportedly active from 1989 onwards. It grabbed national and international headlines for what happened on March 23, 2003. 17 years on, Nadimarg stares back at you. Gloomy, abundant, dilapidated structures stare back at you, reminiscent of that fateful night of March 23, 2003. DD News is here right now in Nadimarg in Pulwama district in South Kashmir, which has reduced to nothing but an isolated, deserted ghost town. Why? Because this is something, the horrific cries of that massacre of way back in 2003, 24th of March, rent the air still after so many decades, so many years. 11 Kashmiri Pandit men, 11 Kashmiri Pandit women, at least 2 children between the age of 2 to 3 years
were reportedly gunned down. They were brought out from these houses. They were lined up on that road reportedly and gunned down, butchered, massacred by Pak-sponsored terrorists. It was the night of 23rd March. Reportedly, terrorists numbering over 20, dressed in fatigues, indiscriminately killed 24 Kashmiri Pandits, which included 11 women and 2 children. The very first house that greets you in the middle of Nadi Marg, which still serves as a grim reminder of 2003 massacre of Kashmiri Pandits. At least 24 of them were brutally gunned down by terrorists. This is one of the house that once used to be an address to one of the Kashmiri Pandits' family. We are learning that their members were also amongst those who were gunned down. आपने उस वाक़ये के बारे में क्या कुछ सुना? हमने यहीं सुना, जब हमारा डेरा यहाँ पहुँच गया, यहीं सुना ये पंडित लोग यहाँ से भाग गया तो ये जम्मू चला गया। यहाँ के कश्मीरी लोग क्या बताते हैं 2003 में क्या हुआ था? उस वाक़ये के बारे में वो क्या बोलते हैं? यही बोलता है, ये इधर जमा किया, मारिया बेचारा, वो कोई भाग गया, कोई क्या, यहीं बोलता रोड, बोलता ये यहाँ रोड में, हाँ इसी रोड में, हाँ इसी रोड में, हाँ ये जो पगडंडी जा रही है सीधे इसी रोड में जमा किया, तो बाद में इनको मार दिया, दोबारा डाला, कोई भाग गया, कोई मार दिया बेचारा। यहाँ के लोग अभी भी उस 2003 के वाक़ये को नहीं भूल पाए ना, नहीं कहते, यही बोलते हैं जी जमा किया तो मार दिया। किनको जमा? मिलिटेंटों ने जमा किया, कश्मीरी पंडित लोग थे जो, वो जमा किया तो मार दिया, बाकी जो रह गया था तो वो भाग गया। हाँ। अभी यहाँ इन घरों में ये सब पंडितों का, सब पंडितों का, सब सारे ये जो है ना, जो सब जितना मला ये सब पंडितों का है। ये जो उधर से लेकर नीचे तक है ना, ये सब पंडितों का मला है, इसमें कुछ नहीं आज इसी तरह है, बैरान जी, ये पंडितों का है सब, और आज कोई भी नहीं इनमें, ये बैरान वतन किया है इसी तरह। और आप भी एक पंडित के मकान में रह रहे हैं? जी हाँ, हम इसमें रहते हैं। आपको कुछ अंदाजा है ये किस पंडित फैमिली का घर है, कौन थे? ये हमको कोई पता नहीं, हमका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमको मत पता है। हाँ। जब आप यहाँ रहने आए अंदर कुछ नहीं था? कहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बैरान दीवार बस, कुछ भी। साल आ गया ना, ये कितना साल का इसी तरह खाली बैरान है, हम तो इसी साल है। वजीर साहब, ये पंडितों का मोहल्ला माना जाता था एक ज़माने में, जब वो हादसा हुआ 24 मार्च 2003, उसके बाद थोड़ा इस गांव के बारे में बताइए। नाडी मर्ग के बाहर भी हम देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पे मंदिर भी है, एक स्कूल भी है। इसके जो बाहर का इलाका है, वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, क्या वो लोग इस गाँव की तरफ आते हैं, कुछ बताते हैं, उनको क्या कुछ याद है? वो यही बताता है, ये हमारी रखवाली, हम देखभाल करता, और क्या, यहाँ पंडित नहीं है, बैरान रह गया यहाँ, तो हम रखवाली करता शरता, नजर गुजर देता है, ये कश्मीरी लोग बोलता है। हाँ, आपके वहाँ पे आगे चल के एक मंदिर भी है, वो मंदिर चल के मंदिर भी है एक, तो उसके आगे स्कूल भी है। हाँ, ये मंदिर वीरान पड़ा? हाँ, ये भी बैरान पड़ा, मंदिर भी बैरान पड़ा है। Wazir Khan tells us that this is the road. I will just request my camera person Ricky to focus on this barren piece of road where reportedly 11 Kashmiri Pandit men, 11 Kashmiri Pandit women and 2 children nearly in the age group of 2 to 3 were lined up at 11 p.m. reportedly and midnight onwards on 23rd March 2003. When DD News team reached here in Nadi Marg in Pulwama district, the local villagers were reluctant to talk to us about what happened in 2003. It was very difficult for my team to understand why there is reluctance to speak about that horrific massacre of 24th March 2003. But nevertheless, as we made our way inside this particular area,
which was then reportedly marked by terrorists, because remember, those 24 Kashmiri Pandits who were gunned down, in fact, lived in most of these houses, and we've been told that the terrorists went inside in counterfeit uniforms. They asked them to come out, they lined them there, and then they shot them dead. KK Niwas, and then the sign of Om, KK Niwas written in Hindi. Apparently the address of this house is house number 6B, and you have in green painted welcome and 1979, which could mean that 1979 was the time, the year when this house was built, and at the time of Greh Pravesh, this was decorated and painted. Let's go inside. लेकिन आपको कुछ मतलब आपने कहा DD News went deep inside the ghost town and met Ejaz from the nearby village. Ejaz, in a choked voice, recalls what is left in him. He lost his Pandit friends in what followed post-massacre. हाँ, कहाँ पे? यहाँ, वहाँ पे आप क्रिकेट खेलते थे। फिर जब मुझे ये बताइए, जब पंडित चले गए यहाँ पे 24 मार्च जो वो हादसा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये गांव खाली होता गया। हाँ, ये धीरे धीरे फिर पूरा खाली हो गया। एजाज, आपने हमसे कहा था कि आप तब बच्चे थे, आप छोटे थे, लेकिन अभी भी आपको याद है कैसा दहशत का माहौल था इस गांव में, और आपने तब क्या सुना अपने माँ बाप से उस रात के बारे में? उस टाइम हमने मैम ये सुना था कि यहाँ पे नाड़ी मरग में 10-20 मिनट लोगों को मार दिया है, कि ये बहुत उस टाइम दहशत का माहौल चल रहा था उस टाइम यहाँ पे, क्योंकि सब डरे हुए थे। फिर ये जगह पूरा सुनसान हो गया है, यहाँ पे अब कोई नहीं रह रहा है। उस टाइम में छोटा था, बस हमने घर में सुना था कि ऐसे वाक़या हो गया नाड़ी मरग में, यही सुना था हमने। ये तकरीबन जितने भी यहाँ पे मकान हैं, ये सारे पंडितों के मकान? जी मैम, ये सारे पंडितों के मकान है, ये सारे उन्हीं की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अभी सुनसान है, अभी इसमें कोई नहीं रह रहा है, ये पूरा खाली है। यहाँ पे ये पंडित लोगों का है। और इसके आसपास के जो गांव के लोग हैं, इस गांव की ओर नहीं आते हैं? नहीं मैम, कभी कभार आते हैं। यहाँ पे सड़क होते, ये सड़क है, यहाँ से चलते हैं लोग, यहाँ पे नहीं आते हैं। बस मैम इसलिए अब तो दहशत फैला हुआ, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है उस तरह। ये 2003 में हुआ था, लेकिन अभी भी ये जो सड़क है, हमें बताया गया है, ये पूरी सुनसान सड़क रहती है। यहाँ इस गांव की तरफ कोई रुख नहीं करता। हालांकि यहाँ पे एक स्कूल भी है, एक छोटा सा मंदिर भी हमने देखा जो सुनसान है, अभी भी बंजर पड़ा हुआ। हाँ, ये तो पड़ा हुआ है, क्योंकि सुनने में आया है कि उनको ऐसी सड़क पे मार दिया है, इसीलिए यहाँ से अभी आने को डर लगता है हर किसी को। इसकी वजह से ये जगह सुनसान पड़ा हुआ है। इन मकानों को खरीदने की किसी ने कोशिश नहीं की? यहाँ के आसपास के लोगों में जो ज़मीन, सबकी अपनी खेती बाड़ी है, ज़मींदारी का काम है, ये पंडितों के मकान तब से ऐसे ही पड़े कि कुछ लोगों ने खरीदने की कोशिश नहीं की यहाँ पे? नहीं मैम, इन्होंने किसी ने खरीदने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई डरता है कि कहीं ये वाक़या हमारे साथ नहीं हो जाए, इसलिए कोई नहीं खरीद रहा है इनको। क्या आपको कुछ याद है 2003 के बाद अभी तक आप भी इसी गांव में रहते हैं, कुछ पंडित फैमिलीज यहाँ आती हैं कभी अपने घर देखने? हालांकि सब कुछ वीराना और बंजर ही है अभी। कुछ फैमिलीज आई कभी, पंडित फैमिलीज यहाँ पे? नहीं मैम, कभी नहीं आई है यहाँ पे, कोई पंडित फैमिली यहाँ पे नहीं आई है। मतलब कोई यहाँ पे नहीं आता है, पंडित या कोई भी नहीं आता है। It seems that the scars are still fresh. The pain is still fresh. Ejaz tells us that he was all of 10 to 11 years of age, but he still remembers what happened that night. The villagers do not even want to come back to this village. He also tells us that since then, after that horrific massacre wherein at least 24 Kashmiri Pandits, including children, were brutally lined up on that road and massacred, after that, the remaining families, there were around 50 to 60 Kashmiri Pandit families living in this particular area, who also, within the span of 72 hours, fled this village only to ensure the safety and security of their families and children. And since then, as Ejaz tells us, nobody even wanted or dared
to come back and even check these houses which once used to belong to happy Kashmiri Pandit families. The massacre of Kashmiri Pandits in 2003 has left a clear and vivid imprint on Ijaz's psyche, though with a limited understanding of the politics of insurgency. As Ijaz grapples with remains of his childhood memories, he takes us through the remains of what was left post-bloodbath of 2003. क्या यहाँ पे आप खेलते थे यहाँ पे? यहाँ पे कहाँ हम पे? खेलते थे। कहाँ यहाँ पे? पे वो पीछे भी एक ग्राउंड है, यहाँ भी खेलते थे हम क्रिकेट। हाँ। उनके साथ जो हमारे पंडित दोस्त थे, इस ग्राउंड में? हाँ इस ग्राउंड में खेलते थे। वहाँ पीछे भी एक ग्राउंड है, वहाँ भी खेलते थे। उनके साथ खेलते कूदते थे, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। तो अब यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, वो मकान भी खाली पड़ा हुआ है, ये मकान भी ये सारी खाली है। इस टाइम इनमें कोई नहीं रह रहा है। While tracing the gruesome Nadigram massacre of 24th March 2003, DD News has now entered another house in a very, very dilapidated condition. Another house that has reduced to ruins. Another house of Kashmiri Pandit family. In fact, the traditions are at large on the houses. In Kashmiri, the living room is called vote, and I think this is what used to be the vote of the house that lived here in 2003. This is what they call in Kashmiri hose or sink, where utensils are washed. In this kitchen here, they must be having some almirah, and this is what they call in Kashmiri daan or chula or a mud stove, which is used to cook food. And now this is nothing, reduced to bricks and mud and maybe some signs of life which once, God knows when, inhabited this house. Now all that has just reduced to these ruins. 2003 से ये सारे घर खाली पड़े हैं। हाँ। अच्छा, आपके कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनके फ्रेंड्स, पंडित फ्रेंड्स इन घरों में रहते थे? कुछ आप लोग आपस में अभी बात करते हो, हालांकि बहुत समय बीत गया है। हाँ, तो उतना तो मैम याद नहीं है। इस घर में मेरा एक दोस्त था और 2-3 घरों में मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलता था। Fragmented memories that come back to him. He remembers he used to play cricket. He was a kid then, some 10-11 years of age, here in this open ground. They say pictures speak louder than words. Then this is what is left of life for the families of the 24 slain Kashmiri Pandits and even those who fled for their lives within a fortnight. Every wall, every bit of dust, mud and grime serves as a grim reminder that there was never a closure of what happened that night. These forlorn, uninhibited structures must have been addresses once upon a time, home to real names, real people. 2003 में क्या हुआ था यहाँ? क्या पता है 2003 में क्या हुआ था यहाँ पर, मतलब ऐसे ही यहाँ पे लाशा पड़ी थी उस टाइम। यहाँ मतलब ऐसे ही खून रेजी हो गई है यहाँ पे, लेकिन बाद में वो पंडित सारे यहाँ से निकल गए। पंडितों की लाशें पड़ी थी। कहाँ पे कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं था, क्योंकि फौज ने फिर बाद में सिविलियन को इधर आने नहीं दे दिया है उस टाइम। हाँ सर, हाँ। अच्छा, उस वक्त आपकी क्या उम्र रही होगी? उस वक्त हमारी यही कोई 25 साल की थी। ना, हमने यही सुना है, क्योंकि शाम का टाइम था। क्या पता है कौन सा, मतलब कौन से आए हैं यहाँ पे जिन्होंने उनको एक ही जगह पे जमा किया है। कौन सी जगह पे? हाँ, उधर नीचे है एक, उधर बहुत सा गड्ढा बड़ा है
खोदा हुआ गड्ढा है उसी कितना दूर है यहाँ से? कम नज़दीक ही है वो इस मकान के थोड़ा उस पार पीछे ही है। सुबह जब हम उठ गए तो हमने देखा है क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब खून खराब। हाँ, खून खराबा हो गया था यहाँ पे। लेकिन जो मतलब हम इस गांव के पड़ोसी गांव है, लेकिन हमने भी सुना नहीं था मतलब उधर नाड़ी मार्ग में ऐसा मामला हो गया है, ऐसा किस्सा हो गया है। हाँ सर। जब वो हुआ 24 पंडितों को मार गिराया, उसके बाद पूरे नाड़ी मार्ग में दहशत का माहौल फैला आसपास। पूरे मतलब इस पूरे इलाके में, नाड़ी मार्ग में ही नहीं तो पूरे इलाके में ही दहशत का माहौल फैल गया। हाँ, पूरे इलाके में ही। ये जो आसपास के ये जो इतने गांव है, सारे गांव में ही ये दहशत का माहौल फैल गया है सर। जो बाकी फैमिलीज थी वो उसी दहशत के मारे फिर वापस जम्मू पहुंच गए, उसी दहशत के मारे। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पहले होता है, हिंदू और मुसलमान बाद में होता है। उस वक्त आप लोगों ने कुछ की कोशिश की रोकने की या बचाव की? मैं समझती हूँ कि दहशत बहुत सी कोशिश की उन पंडितों को जो बचे हुए थे यहाँ पे, उनको यहाँ पे मतलब वापस रुकाने के लिए बहुत सी कोशिश की थी, लेकिन वो बाद में न जाने रात ही भर वो चले गए। 2-3 दफ़े हमने उनको काजीगुंड से इधर लाया है वापस, क्योंकि आप मत जाओ, आपको यहाँ पे मतलब घर है, ज़मीन है, दरख्त है, सब कुछ है, आप यहाँ से मत निकल जाओ। ये सारे पंडित मकान? हाँ, ये सारे के सारे पंडितों के मकान हैं। कुछ आपको याद है यहाँ कौन रहते थे? एक का नाम था उधर, वो जो राधा कृष्ण है वो ऊपर उसका मकान था। हाँ, जहाँ कुछ याद है आपको इनमें? कुछ अगर याद आ ललता जी उस मकान में रहते थे। कौन से मकान? वो जो वाइट वाला जिसमें जिसकी छत उड़ गई है? हाँ, जिसकी छत वत उड़ गई है। हाँ, ललता जी उसी मकान में रहती थी। हाँ, पंडित का मकान है, इसमें ओम। हाँ, ये भी पंडितों, ये मान लो ये सारा मोहल्ला पर, हाँ ये सारा मोहल्ला पंडितों का ही था, सारा का सारा। यहाँ की मतलब ये जो जमीन है ये भी पंडितों की है, दरख्त भी पंडितों के थे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक मंदिर भी। हाँ, ये मंदिर है, ये भी उन्हीं का था। Even for a generation that wasn't privy to 2003 massacre of Kashmiri Pandits, Nadi Marg has been reduced to a bunch of forsaken, neglected properties of Pandits. Perhaps bedtime stories. Once upon a time in Nadi Marg, Pandits lived. Nadi Marg is reduced to nothing but a small deserted transit village which connects Katipora to Mujmarg, which is around 1 to 2 kilometers away from here. Well, on my left, while we were tracing the horrific massacre of 2003 in Nadi Marg, we bumped into Nadi Marg Zone Imam Sahab School, Government Boys Primary School, and the locals tell me this is the school of पंडितों के टाइम का। यही कहते थे कि यहाँ पर पंडित भी थे और यहाँ का जो आसपास के जो गांव भी है वहाँ के भी यहाँ पर आते थे लड़के खेलने, क्रिकेट खेलने, बाकी गेम्स उनमें भी पार्टिसिपेट करते थे और यहाँ पर भी पढ़ते थे। बहुत सारे पंडित के लड़के भी लड़कियाँ भी यहाँ के आसपास के गांव के मुसलमान भी पढ़ते थे, तो इसीलिए एक दूसरे से अच्छी फ्रेंडशिप थी। मतलब जब हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, मतलब यहाँ पर वो नहीं है, उनकी भी बहुत याद आती है इसीलिए। आप 2003 में आपकी क्या एज थी? जी 2003 में यही 2-3 साल का 2-3 आप 2-3 साल के थे जब वो हादसा हुआ, वो मैसेकर हुआ। आप अपने दादा दादी मम्मी पापा से क्या सुनते हो? वो कुछ बोलते हैं आपको? जी यही बोलते हैं कि उस टाइम वो सोने का टाइम था, उस टाइम मतलब रात थी। फिर जब सुबह उठे नींद से तो यहाँ पर सारी फौज ने मतलब सारा एरिया कवर किया था, तो फिर यही से पता चला कि इनको मारा गया। वो बोलते जब हम यहाँ पर आते हैं तो उनकी बहुत याद आती थी, बहुत याद आती है आज भी, मतलब बहुत अपसेट होते हैं, मतलब वो यहाँ पर आज नहीं है, उनकी बहुत याद आती है, यही बोलते हैं। Riaz, thank you very much. कांगड़ी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Well, for the generations of Riaz and many like him, one thing is very clear, that Kashmiri Pandits and the 2003 massacre, what happened
post 24th March 2003, the circumstances in which this Nadimarg village, which once used to house close to 200 Kashmiri Pandits family, within a span of few months, everything changed and it slowly and gradually turned into a ghost town. And for the forthcoming generations, remember, almost close to 2 decades, what happened has just been confined to one of the darkest chapter in the political history of Kashmir. And for Riaz's generation, these are nothing but hearsay stories. 11 of the 24 people killed in the Pulwama district of South Kashmir late last night were women and 2 were children. Unidentified terrorists in combat dress directed the unsuspecting victims to assemble for an identification parade, then shot them dead in cold blood. आपका नाम, आप कौन से गांव में रहते हैं और आपको क्या कुछ याद है 2003 का? जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं बिल्कुल जो ये नाड़ीमरा गांव है इसके बिल्कुल पास में ये जो नेक्स्ट विलेज है, काठपुरा नाम है उसका, मैं वहीं का बाशिंदा हूँ। वो जो उस टाइम नाड़ीमरा का जो भी सन है, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं, जो जैसा आप बता रहे हैं 2003 में जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ। वो बीइंग ए ह्यूमन या आप इंसानियत के हिसाब से अगर आप देखेंगे या आपने, वो बहुत ही बुरा था हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। मैं एज अ मुस्लिम बोल रहा हूँ, वो बहुत ही बुरी चीज़ थी। बस ये मैं कह सकता हूँ। What do you remember? What according to you happened उस वक्त? क्या मतलब जो अब लोग बातें करते हैं यहाँ पुलवामा के, नाड़ीमर के लोग, आसपास के मुस्लिम जो है आपके भाई लोग, वो क्या बात करते हैं उस वक्त? नहीं, उस वक्त की बात मतलब मैं अभी 40 साल का हूँ, मैं तब मतलब कोई 30 साल का था, तो मुझे अभी याद है कि हम लोग ये सोचने से भी डरते हैं कि कहीं वो दोबारा ना हो जाए या कहीं उस चीज़ को दोबारा हम याद नहीं कर रहे, याद करना भी नहीं चाहते हैं। वो बहुत ही बुरी चीज़ थी। मैंने न्यूज़ में सुना था, हमारा एक्चुअली हम गाँव के जो लोग हैं, हम ना एक 7:30 का एक प्रोग्राम आता है शहरबीन करके हुआ करता था। मैंने जब उसमें सुना था, मतलब मैं उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था श्रीनगर में, तो मैंने जब वो न्यूज़ में सुना कि वो मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, जो वो बुरा था। जितना मेरे साथ एक्चुअली उनमें से कुछ लोग मेरे साथ बिल्कुल क्लासमेट्स थे। विकी कुमार था एक, वो कश्मीरी पंडित, बिल्कुल एक राकेश कुमार है, बिल्कुल मतलब 8th स्टैंडर्ड से हम 12th तक इकट्ठे पढ़ रहे थे। इवन अभी भी मुझे याद है कि मतलब दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल और वो अनबेरेबल था। आपका क्या सोचना है इस बारे में? अब जो कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में बात हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं पंडित लोग भी वापस अपने घर आना चाहते हैं, लेकिन ये देखा हमने, ये गांव पूरा सुनसान है। हाँ, देखिए, एक्चुअली अगर वापस आना चाहते हैं, हमें उनके वापसी में हमें कोई ना कोई मतलब हम उसके बुरा सोचते या ना कुछ है। उनका आने दे, उनका हम बिल्कुल दिल से, तहे दिल से उनका वेलकम करते हैं। The then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee announced relief of ₹1 lakh from the Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of 24 Kashmiri Pandits in Nadimarg massacre. The massacre came a day after the killing of Hizbul Mujahideen leader Abdul Majid Dar, and at a time when Mufti Muhammad government was trying to persuade Kashmiri Pandits to return to the valley. And just a day after Nadimarg brutality, fear-stricken Pandits left the village the next day after the massacre. Home to them was no more a safe haven. Did they ever look back? Why did no one stop them? Why? There are at least 15 to 20 such houses wearing an absolute deserted look. But it's not only about the deserted look that speaks volumes of the horror that the slain Pandit families had to go through on that fateful night of 24th of March 2003. The life, it seems, the time, it seems, stood still in this ghost town of Nadimarg in Pulwama district. That is the silence that stayed in Nadimarg. That is the numbness that stayed in Nadimarg. Nadimarg is indeed a tragedy forgotten.
Tragedy, consequence of the failed policies of state. Tragedy born out of Pakistan-sponsored terror. Now confined to one out of many dates of numerous massacres that Kashmiri Pandits were subjected to 1990 onwards. This one, the Nadimer massacre of March 23, 2003, is now just another date.